Good afternoon, everyone. Hi, how are you all? I hope you all are fine at your places. Since you all know that we are doing chapter number 6, the challenges of culture diversity, right? Yes, the challenges of culture diversity, right? So, as usual, I'm gonna share my screen. Okay, so here I go. Okay, so here I go. Here I go. Okay, so yes, we were doing this chapter number 6, the challenges of culture diversity. And today we will understand certain things that will really help us to understand कि सच में challenges बहुत ज़्यादा हैं culture diversity की वजह से इंडिया में, right? And always culture diversity की वजह से lot of challenges होते हैं that a government or a state or a nation face, right? So let's start the chapter. So we have already discussed about all these things that culture diversity presents tough challenges and how it presents tough challenges. This is what I've already discussed. And then how community identity is formed. Look, there are two kind of identities. One identity is community identity and the other one is your nation identity, right? So there are two identities. I've already discussed community identity. Now, what is community identity? Community identity comes out of our culture, right? The language that we speak, the religion that we belong to, the caste that we belong to, the values that we follow, the norms, rituals, customs, all these things are actually there in a culture, and community always belongs to one culture or the another, right? So how community identity is formed? It is formed through all these things, right? When you will read all these things, you will understand it, right? But for that you have to give time. For that you have to really utilize your time and really go through all these things, right? Because without giving time, you are not going to get anything out of it, right? So it's important to do that. Okay, so this is what criteria of culture identity and all those things, right? Obviously they are based on birth, and our community gives us a sense of security and satisfaction. I've already discussed all these things. We are emotionally attached to our community, right? Okay, nation state. So in the last class, I discussed with you nation state and then obviously nation state as well. So now I'm sure you all know that. You know what? I always tell you to attend the classes on the regular basis. Otherwise, you won't able to understand these things, right? So nation means a large scale community, right? Yeah, community of communities. When we say India as a nation, we sometimes use this term nation. India is a nation. Then what does it mean? It means that India has got a lot of culture diversity. India has got a lot of communities based on religion, community based on caste, community based on race, community based on ethnicity, community based on language, right? So we've got a lot of communities. So that's the reason we can say that India is a community of communities. So that's why it is here written that it is a community of a community, right? So when we see nation, we always try to understand it from the cultural aspect, right? We are understanding it from the community aspect, we understand it from the cultural aspect. And state is something that has certain characteristics, like state has got certain territory. In fact, nation has also got certain territory. But to define a nation is a very difficult thing. It's not easy to define a nation, because nation में बहुत सारी diversity होती है. Nation में बहुत ज़्यादा ओके सो नेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो हम कहीं ना कहीं इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन, राइट? डिस्क्राइब करना तो आसान है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन, राइट? बट स्टेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट के पास सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. जब हम कहते हैं एक स्टेट है, तो कहने एक टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है और सोवरेनिटी है, द सुप्रीम पावर. स्टेट में अब इंडिया को भी स्टेट मान सकते हैं, और इंडिया के अंदर जो फर्दर डिविजन हुई है स्टेट में, उनको भी स्टेट मान सकते हो, राइट? स्टेट में ऑब्वियसली अगर हम अपने सपोज हम किसी स्टेट की बात करते हैं, नाउ जे.एंड.के इज नॉट अ स्टेट एनीमोर. सपोज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बात करते हैं यूपी की, बात करते हैं. तो यूपी हैज गॉट सर्टेन टेरिटरी, यूपी हैज गॉट सर्टेन पॉपुलेशन, यूपी हैज गवर्नमेंट, राइट? योगी आदित्यनाथ, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ
Uttar Pradesh, right? Then he has got the sovereignty. Sovereignty means supreme power. So government has got the supreme power, right? So ये हमने कहीं ना कहीं state के form में देखा. कहीं ना कहीं India को भी हम state एक मान सकते हैं. कैसे? India has got territory, India has got population, India has got government, India government in the form of BJP, Narendra Modi is there, and then Narendra Modi has got the supreme power. He has got the sovereignty. So these are the four characteristics, right? So कहीं ना कहीं हम states को यहाँ पे Indian context में समझेंगे कि इंडिया को अगर हम स्टेट कह रहे हैं तो किस बेसिस पे कह रहे हैं, राइट? सो स्टेट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं और नेशन को हम कम्युनिटी ओके सो कम्युनिटी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, राइट? और ओके तो मैक्स वेबर ने स्टेट की बहुत एक अच्छी डेफिनेशन दी थी. उन्होंने क्या कहा था? अ स्टेट इज अ बॉडी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स अ मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी. मोनोपोली मींस एक्सक्लूसिव राइट, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास ही है और जो अपनी फोर्स फोर्स अपनी लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, राइट? जैसे इस वक्त अगर देखें तो लेजिटिमेट पावर बीजेपी के पास है, इंडिया के पास, इसलिए उनके पास एक लेजिटिमेट फोर्स मींस एक लॉफुल फोर्स, समथिंग दैट गोज विद द लॉ, राइट? लॉफुलनेस, जहां पे कहीं भी अनलॉफुलनेस नहीं है, सब लॉज के अकॉर्डिंगली everyone is exercising their power. अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, so मैक्स वेबर की इस क्वेश्चन आता है कि how मैक्स वेबर defines a state. So then you have to say that state is a body that successfully claims a monopoly. Monopoly means exclusive right, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के पास ही मोनोपोली हो चुकी है, एक एक्सक्लूसिव राइट है. किसका एक्सक्लूसिव राइट है? वो एक्सक्लूसिव राइट है लेजिटिमेट फोर्स का, मींस जो लॉफुल फोर्स है, पूरे लॉज के अकॉर्डिंगली फोर्स ऑक्यूपाई हो रही है या एक particular force in a territory, right? It's very important to understand nation state, because if you won't understand these things, then further you will face a lot of difficulties to understand the things, right? Because this chapter is a very critical and very sensitive chapter, right? That's the reason this chapter has the highest share in your marks, right? It's a very, very sensitive or critical. That's the reason I'm again and again, focusing on the thing, emphasizing nation, state, right? So nation ka, I'm sure now you have got the idea, or state ka, I'm sure you have got the idea, right? Okay. So कहीं ना कहीं state तो define हो सकती है, but it's very difficult to define a nation because nation has got a lot of diversity, right? So कहीं ना कहीं इसलिए question आता है कि a nation is a peculiar sort of community that is easy to describe but hard to define. So I've already discussed with you कि क्यों ये difficult होता है, क्योंकि इंडिया में देखो कितनी कल्चर डाइवर्सिटी है, बट स्टिल इंडिया एक यूनाइट है, राइट? और यूरोपियन कंट्रीज में देख लो, all the countries, most of the countries in the European region, they speak English, but कहीं ना कहीं वो एक particular united है, कहीं ना कहीं वो एक nation state बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, but इंडिया बना रही है. तो इसलिए nation state को define करना बहुत मुश्किल है. कहीं पे diversity होने के बाद भी हमारी nation state establish हो जाती है, और कहीं पे कॉमननेस होने के बाद भी नहीं होती है, राइट? इसलिए कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत सारी है नेशन को डिफाइन करने के लिए. दैट्स द रीजन वी ऑलवेज से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नेशन, राइट? Okay, I'm discussing all the things that I've already discussed, right? So nation state, okay. So nation state, जब एक nation nation always aspires to get a political system, और जब nation जो एक कहीं ना कहीं उनमें collectiveness है, we feeling है, and when that particular nation gets स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाती है, तो उसको हम नेशन स्टेट कह सकते हैं. और मॉडर्न सोसाइटीज में नेशन स्टेट का बहुत सारा कंसेप्ट है. इंडिया इज अ नेशन स्टेट, राइट? और बहुत सारी नेशंस जो कहीं ना कहीं स्टेट में आ गए हैं, या स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स जिनमें आ गए हैं, सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट आ चुकी है, देन हम उसको नेशन स्टेट कहते हैं, राइट? सो नेशन स्टेट को कैसे डिफाइन करें? इट रेफर्स टू कल्चरल ग्रुप that lives within a political system willingly, right? अगर एक नेशन ने स्टेट की फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर ली है, अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं वो विलिंगली रह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वो विलिंगली नहीं रह रहे, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं. तो इट रेफर्स टू कल्चर ग्रुप. ऑब्वियसली एक नेशन तो कल्चर ग्रुप ही होता है ना, दैट लिव्स विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम विलिंगली, और जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर रहता है, गवर्नमेंट के अंडर रहता है विलिंगली, एंड इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. मॉडर्न वर्ल्ड में नेशन स्टेट कंसेप्ट बहुत ज्यादा होता है, राइट? ओके, so you will easily understand what it means. Okay, so in the last class I started in the later phase, or in the last minutes, I told you that
culture diversity is a very, you know, it's a very critical and very dangerous thing to have in any nation state or in any nation or in any state, right? It's very difficult. So इसलिए क्या होता है, जब culture diversity होती है तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट होता है, इट इज अ थ्रेट, यू नो, एक हमेशा थ्रेट होता है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी को, एक पर्टिकुलर एरिया को, एक पर्टिकुलर कंट्री को हमेशा एक थ्रेट होता है, किससे? कल्चर डाइवर्सिटी से। क्योंकि यू नो कल्चर जो भी हमारी कंट्रीज में यू नो मोस्ट राइट्स होते हैं, जो दंगे होते हैं, जो वायलेंट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, वो क्यों होती है? कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से होती है। एक पर्टिकुलर डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिफरेंट कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, डिफरेंट यू नो रीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सदर्न स्टेट वाले नॉर्दर्न के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है। तो बहुत सारे यू नो कल्चर डाइवर्सिटी को इतना ईजी नहीं है ये टॉपिक, इट्स अ वेरी यू नो कॉम्प्लिकेटेड और वेरी यू नो डिफिकल्ट थिंग। सो अब क्या होता है, और सारी स्टेट्स को, स्टेट्स जब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो स्टेट्स मींस कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर टेरिटरी जिसमें गवर्नमेंट वगैरह सब कुछ है। तो स्टेट्स को हमेशा एक डर रहता है कल्चर डाइवर्सिटी का, क्योंकि राइट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, राइट? सो हम यहाँ पर समझेंगे। तो थ्रेटन बाय कम्युनिटी आइडेंटिटीज, ऑब्वियसली कम्युनिटी आइडेंटिटी जो होती है किसी भी बेसिस पे, तो उसकी वजह से स्टेट क्या करती है, हमेशा कोशिश करती है कि कल्चर डाइवर्सिटी को खत्म किया जाए, राइट? बहुत सारी स्टेट्स ट्राई करती है कल्चर डाइवर्सिटी को खत्म करना, राइट? सो कैसे करती हैं, दैट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू टू पॉलिसीज। one is policy of assimilation, the other one is policy of integration, right? Remember that I'm teaching you everything like, you know, I'm telling you a story wise, एक sequence में I'm teaching you so that you can understand these things, right? Okay, so कहीं ना कहीं हम policies की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? Why are states often suspicious of culture diversity? So हमेशा उनमें एक you know doubtful state of mind में रहती है हमेशा state government, you know, जो rule कर रही है वो हमेशा doubtful, एक suspicious mindset में रहती है culture diversity होने की वजह से. Now you easily understand, okay? States try to establish their political legitimacy through nation building strategies. अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जो स्टेट होती है कहीं ना कहीं, जिसको हम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि कहीं ना कहीं वो नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो दैट कहीं ना कहीं एक कल्चर डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस ना मिले, एक नेशन की डेवलपमेंट हो। जब हम डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कल्चर डाइवर्सिटी को हम थोड़ा सा यू नो वी don't give that importance to it, right? So states try to establish their political legitimacy through nation building strategies, right? So states always you know try to focus more on the nation building strategies, right? Okay, so they have always tries to establish their political legitimacy through nation building strategies. So what state does is that स्टेट क्या करती है, स्टेट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मींस अपनी पावर जो उनकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी में होती है, वो पावर वो कैसे अपनी इंक्रीज करती है या कैसे उसको सस्टेन करके रखती है, नेशन बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज या सर्टेन डेवलपमेंट स्कीम्स लाती है गवर्नमेंट कि सो दैट कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो और कहीं ना कहीं कल्चर डाइवर्सिटी की वजह से कोई हैम्पर ना हो, डेवलपमेंट खराब ना हो एक पर्टिकुलर टेरिटरी की, राइट? सो ये हो गया नंबर वन पॉइंट. दे sought to secure the loyalty and obedience of their citizens through policies of assimilation and integration. अब देखो policies of assimilation and policies of integration, we'll understand you know these two policies in the further slides, right? In the next slides. So state क्या करती है, state culture diversity के साथ डील करने के लिए कुछ policies को adopt करती है, right? It's as simple as you can understand this, right? कुछ policies को adopt करती हैं और वो पॉलिसीज को अडॉप्ट करने की वजह से वो अपने सिटीजन्स जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, उनकी लॉयल्टी और उनकी ओबीडियंस, यू नो, वो सिटीजन्स कहीं ना कहीं फेथफुल रहे उनके साथ और कोई रॉयल्स या कोई कंफ्लिक्ट ना हो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, वो उसकी कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट करती हैं लॉयल्टी और ओबीडियंस को गेन करने के लिए, वो कुछ पॉलिसीज को यूज करती हैं. पॉलिसीज हम समझेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव generally been suspicious of cultural diversity and have tried to reduce or eliminate it. अब किसको reduce या किसको eliminate करना है? cultural diversity को. state हमेशा कोशिश करती है, एक state हमेशा, एक nation state हमेशा कोशिश करते हैं कि वो हमेशा cultural diversity को या तो कम कर दें या तो reduce कर दें ना. एक कल्चर डाइवर्सिटी रिड्यूस या कम, रिड्यूस होगी या एलिमिनेट कैसे होगी? पॉलिसीज से, पॉलिसीज ऑफ सिमुलेशन और पॉलिसीज ऑफ इंटीग्रेशन से कल्चर डाइवर्सिटी रिड्यूस और एलिमिनेट होगी. ओके, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस.
The states fear that recognition of varied culture diverse identities such as language, ethnicity, religion will lead to social fragmentation and prevent the creation of harmonious society. अब क्यों societies certain policies, why societies, why state or why government follow certain policies like policy of assimilation, policy of integration, so that कहीं ना कहीं there should be less culture diversity, और कहीं ना कहीं अगर culture diversity होगी तो the territory will be divided into fragments, कहीं ना कहीं fragment हो जाएगी, division हो जाएगी, it will be divided into parts. So कहीं ना look at that, the sensitivity of this topic, it's very very sensitive topic, right? Okay, so कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं through certain policies reduce या eliminate करने के लिए, right? ओके सो कहीं ना कहीं सो दैट हार्मोनियस सोसाइटी बनी रहे, सोसाइटी में बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर कल्चर डाइवर्सिटी ज्यादा राइज करेगी तो क्या होगा, कल्चर डाइवर्सिटी अगर राइज करेगी तो कभी भी सोसाइटी हार्मोनियस नहीं होगी, कन्फ्लिक्ट होंगे, राइट्स होंगे, दंगे होंगे, वायलेंट डिस्टर्बेंसेस होंगे, राइट? सो स्टेट पॉलिसीज अडॉप्ट करती है, राइट? कहीं ना कहीं इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि state always focus on the national building strategy, state always try to adopt certain policies like policy of assimilation, policy of integration to reduce or to eliminate it. It means culture diversity, to reduce or eliminate culture diversity, state always follows certain policies, right? Okay, so this is what happens so that society harmonious rahe, right? Okay, apart from the fear of fragmentation, accommodating these differences is politically challenging, right? अब देखो, look at the sensitivity of this topic, is very very sensitive, right? अब क्या होता है, देखो, अब फ्रेगमेंटेशन के फेयर से कि सोसाइटी फर्दर डिवाइड ना हो जाए, वो तो एक फेयर है ही है, बट कहीं ना कहीं अकोमोडेट कैसे करना है, इतनी सारी कल्चर डाइवर्सिटी को कैसे साथ रखना है और बैलेंस बना के रखना है और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, हार्मोनियस सोसाइटी, वो भी एक चैलेंज है. सो लुक एट दैट, एक जगह एक जगह कुआं है और एक जगह खाई है, right? So look at that, the both side, both difficulty है सिचुएशन को संभालना. एक जगह सोसाइटी को फ्रेगमेंट भी नहीं होने देना, और दूसरी जगह कहीं ना कहीं अगर उसको कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली चैलेंज भी है. तो लुक एट दैट, व्हाट इज हैपनिंग. Thus, so many states have resorted to either suppressing these identities or ignored them in the political domain. So क्या होता है, certain जो states होते हैं वो policies adopt करती हैं, या जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको स्प्रेस कर देती है, उनको बिल्कुल दबा के उनको बिल्कुल, व्हाट वुड आई यूज वर्ड है, ट्राई टू एलिमिनेट कर देती है, और कहीं ना कहीं यहाँ रिड्यूस कर देती है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई हैव बीन डिस्कसिंग, राइट? या पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पे छोड़ देती है, राइट? इसलिए हम कहते हैं कि वो गवर्नमेंट आई थी तो वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कल्चर डाइवर्सिटी को समझ रही थी, सबके मिनॉरिटी मेजॉरिटी सबके राइट्स को समझ रही थी और सबको सपोर्ट कर रही थी. और किसी गवर्नमेंट का माइंडसेट होता है कि नहीं, हम कल्चर डाइवर्सिटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम अपने तरीके से विल डील विद द सिचुएशन. सो कहीं ना कहीं इसलिए स्टेट्स क्या करती हैं, स्टेट्स हमेशा या तो कल्चर डाइवर्सिटी को पूरी तरह एलिमिनेट कर देती हैं या उनको रिड्यूस कर देती है, राइट? सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. और हम अब जो रिडक्शन है या जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं कल्चर डाइवर्सिटी को, वो हम समझेंगे थ्रू द पॉलिसीज ऑफ व्हाट, through which policies, through policies of assimilation, policies of integration, right? Okay, so this is the next slide. अब जल्दी से समझना कि assimilation क्या होता है और हमारी integration क्या होती है. अब the simple way to understand this is when I say assimilate or assimilation क्या होता है, to observe into a culture tradition, to observe into something. जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ऑब्जर्व हो जाती है, पूरी तरह मिल गुल जाती है, तो उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, उसको कहते हैं हम एसिमिलेशन. और इंटीग्रेशन क्या होता है? अब इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं यूनाइट हो जाना एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ. सो एलिमिनेशन और कहीं ना कहीं एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन में ये फर्क है कि एसिमिलेशन पूरी तरह अब्सॉर्ब करा देती है एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को लार्जर सोसाइटी में, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है कल्चर डाइवर्सिटी, और एसिमिलेशन में पूरी तरह एलिमिनेट होती है हमारी कल्चर डाइवर्सिटी. अब look at that. Look, I will read through these lines and you will easily understand. Okay. Assimilation, it means people coming from a different culture adopt the new culture norms and making their own culture fade, become secondary, making the new one primary. You assimilate with it, with it and replacing your background with the new norms. Rather by saying integrate, you mean the different culture coexisting equally. When you integrate into the society and you adopt the new culture, but also you would. Okay, so kahin na kahin, look at that.
रिडक्ट एलिमिनेट कहाँ पे हो रही है आइडेंटिटी? पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन में। और रिड्यूस कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में। और वही चीज इस यहाँ पे भी है। अब देखो कहीं ना कहीं यू नो सिंपली look at that, what happens, suppose कोई डिफरेंट रिलीजन इंडिया में आता है, एंड वो रिलीजन जब इंडिया में आता है तो कहीं ना कहीं एक स्टेट के पास ऑप्शंस होते हैं, या तो जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हमारी कंट्री में आएगा तो कहीं ना कहीं उस पे हम पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन यूज करें, जहां पर क्या होगा, वो हमारे कल्चर को फॉलो करेंगे, हमारे ट्रेडिशन वैल्यूज को फॉलो करेंगे, बट कहीं ना कहीं अपने कल्चर को वो सेकेंडरी ले लेंगे। ऑल्दो उनका वो प्राइमरी कल्चर होगा, बट कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को सेकेंडरी ले लेंगे। यहाँ पर ये होती है पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है कि अगर कोई दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है, कोई रिलीजियस पर्सन जिसके पर्टिकुलर रिलीजन है, राइट, अगर हम इंटीग्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा, हम कहीं ना कहीं उसको बोलेंगे कि आप अपना कल्चर भी फॉलो करो, हमारा भी फॉलो करो। कहीं ना कहीं इक्वल इंपॉर्टेंस जब दोनों कल्चर को मिलती है तो उसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन। बट कहीं ना कहीं जब इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों कल्चर को नहीं मिलती है, उसको हम कहते हैं पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन। ओके, सो एसिमिलेशन इज जनरली डिफाइंड एज अडॉप्टिंग द न्यू वेज ऑफ अनदर कल्चर। सो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि सपोज कोई डिफरेंट कंट्री से हमारी कंट्री में कोई इंसान आता है, कोई इंडिविजुअल आता है, तो अगर वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करेगा, उसके लिए ऑब्वियसली हमारा कल्चर न्यू होगा, राइट। सो सिमुलेशन में क्या होता है, वो हमारा कल्चर अडॉप्ट करेगा और फुली बिकमिंग पार्ट ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। ऑब्वियसली उसके लिए एक डिफरेंट सोसाइटी होगी, जब वो यहाँ पर आएगा तो फुली अडॉप्ट करेगा हमारे कल्चर को। वेयरएज जो इंटीग्रेशन होगा इज टिपिकली डिफाइंड एज द इनकॉर्पोरेटिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स इनटू सोसाइटी एज इक्वल। कहीं ना कहीं वो हमारे कल्चर में आ रहा है, बट कहीं ना कहीं हम उनको कहेंगे आप अपना कल्चर भी मेंटेन करके रखो, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी हमारे कल्चर को भी, वो फॉलो करेगा, अपने को भी फॉलो करेगा, और कहीं ना कहीं इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी और को एग्जिस्टेंस होगी दोनों कल्चर की, राइट। बट एसिमिलेशन में ऐसा नहीं होता। एसिमिलेशन में बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है चीजें, राइट, किसी का कल्चर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है, राइट। This is what, अब देखो, अब look at that, I've already told you that this is a very sensitive topic, right? It's not easy to understand it. Okay, so integration may sound wonderful, but this isn't it always the case. Integration somewhere हम यही समझ रहे हैं कि integration is a very good thing, right? But remember that imagine the chaos that would result if a mass migration of Britons insist the United States integrates the tradition of driving on the left side. Okay, now but basically this paragraph I've added this so that आपको और understanding हो simulation और integration। अब क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पर कंट्री में we always drive our car, you know, on the left side, और ब्रिटेन में भी ऑलवेज वी ड्राइव कार ऑन द लेफ्ट साइड। बट अमेरिका में ऐसा नहीं होता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स में you know people drive their car on the left side, on the right side, right? So this is what happens. Okay, so if any culture is coming in our country, or if any culture is coming to the other country, then what happens, that particular person has to adopt the culture of the other country as well. कहीं ना कहीं अगर हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनके कुछ कल्चर को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सपोज हम अमेरिका में चले गए, ठीक है, हमें आदत है यहाँ पर कि लेफ्ट साइड अपनी गाड़ी को चलाने की, अगर हम वहां पर जाके भी लेफ्ट साइड चलाएंगे तो कहीं ना कहीं दैट विल बी अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, वो क्योस हो जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं हमें उनके कल्चर को भी फॉलो करना पड़ेगा, उनके वे ऑफ लाइफ को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो राइट साइड व्हीकल चलाते हैं। सो एक काइंड ऑफ एग्जाम्पल है। सो हर जगह यू नो वेरी डिफिकल्ट टू कि you know it always becomes very difficult for a state कि हम you know policy of assimilation को adopt करें या policy of integration को adopt करें, कहीं ना कहीं हर everywhere you know प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, राइट। ओके, सो पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन और पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन अब जल्दी से हम पढ़ेंगे एंड आई एम श्योर यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके, सो द पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज। सो पॉलिसीज क्या होती है, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज होती है, कहीं एलिमिनेशन क्या इंटीग्रेशन की। The policies or strategies of assimilation and integration try to establish a singular national identity. So basically इनका policy, जो policy of assimilation या policy of integration है, कहीं ना कहीं इनका main objective क्या होता है, इनका main objective ये होता है कि एक singular national identity को create करे, कहीं ना कहीं लोगों में culture diversity नहीं हो, उतनी नहीं हो या कम हो, क्योंकि अगर culture diversity होगी तो कहीं ना कहीं हम कभी भी नेशनल आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं फॉर्म नहीं कर पाएंगे। नेशनल आइडेंटिटी पूरे नेशन की एक आइडेंटिटी, राइट, वो कहीं ना कहीं फॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, राइट। अब देखो इंडिया में भी अगर हम बात करें, सो लुक एट दैट, नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल हियर इन इंडिया
speak which language? Most of the people here in India speak Hindi language, right? सब हिंदी यूज करते हैं, but remember that हिंदी सब यूज करते हैं, उसके बावजूद भी, despite that, Hindi is not a national language. How confusing that can be. Hindi is not a national language. You know, हम कहते हैं कि national language क्या है हमारी? हमारी कोई national language ही नहीं है. Hindi is just an official language. English is just an official language. हमारी national language हिंदी है ही नहीं. हमारी कोई भी national language नहीं है. Why? Because कहीं ना कहीं lot of diversity is there, lot of culture diversity is there. That's the reason, you know, we don't have any national identity, right, in the form of language, right? Okay, so policy of assimilation. Whenever everybody decides to follow one norm, one belief, and one culture, the whole country follows the majority, as they are more powerful policies that promote assimilation are aimed at. Ab look at that. When everybody decides to follow one norm, one belief, and one culture. So look, जब सब एक कल्चर को, एक बिलीफ को और एक नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं assimilation, that's the policy of assimilation. Why? How we can say that that's the policy of assimilation? We can say it because we are trying to do what? We are trying to completely eliminate कि और कोई आइडेंटिटी और कोई कम्युनिटी की आइडेंटिटी हो ही ना. इसलिए wherever जिस भी कंट्री में पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन होती है, वहां पर you know there is always one norm, one belief और one culture होता है, right? Okay, so we can take the example of you know पाकिस्तान में एक ही you know norm, एक ही belief और एक ही culture follow होता है, because Pakistan is an Islamic state, right? They always try to, all the people are you know, they always try to follow one norm, one belief, and one culture, right? So kahin na kahin policy of assimilation is working there. I'm sure you are understanding. Okay, the whole country follows the majority, so everyone there follows the majority. Ki Muslim majority hai, so everyone will you know follow them because they are more powerful, right? Policies that promote assimilation are, jo policies assimilation प्रमोट करती हैं, उनका क्या एम होता है उस पॉलिसी का? Persuading means convincing, encouraging or forcing all citizens to adopt a uniform set of cultural values and norms. These values and norms are usually entirely or largely those of the dominant social groups. Other non-dominant or subordinated groups in society are expected or required to give up their own culture values and adopt the prescribed one. Now I'm sure आपको सारा समझ आ जाएगा कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी डिस्कशन कर ली है पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन में. कहीं ना कहीं डोमिनेंट ग्रुप का कल्चर फॉलो हो रहा है उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जहाँ पर पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन इज वर्किंग, राइट? सो कहीं ना कहीं नॉन डोमिनेंट ग्रुप या जो सबऑर्डिनेट ग्रुप हैं जो डोमिनेशन में नहीं है, उनको भी एक ही कल्चर फॉलो करना पड़ रहा है, और यही होता है पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन, जहां पे देयर इज कंप्लीट असिमिलेशन, देयर इज कंप्लीट elimination of all the other cultures और एक ही culture follow हो रहा है, right? So this is what policy of assimilation is all about. A policy of integration थोड़ा बहुत liberal है, थोड़ा बहुत freedom है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो dominant group का culture है वो तो follow होगा ही होगा, कहीं ना कहीं जो अपना belief जो minorities में है जिनका culture dominate नहीं कर रहा है एक particular territory में, वो अपना culture भी follow कर सकते हैं. But कैसे होता है? यहाँ पे भी condition होती है. All people follow national culture on or pattern public life and keep all non-material culture in the private life. अब दो you know private life में you know we can exercise our culture, but public life में openly हमें एक national culture को follow करना पड़ेगा जो एक majority या dominant group का culture है एक particular society में. For example, now Jan Gan Man is national, but Vande Mataram would be non-national. Now what does it means? Look, when we talk about Jan Gan Man, it is actually a national identity. It is a national anthem, right? But when we talk about Vande Mataram, that is simply a national song. So everyone is born to speak national anthem, that is Jan Gan Man, but everyone is not born to speak your Vande Mataram because it is generally a national song, and this song was you know sung by the people who were fighting during British time, right? So it was that particular kind of song that people would sing during the British rule or when they were fighting against the Britishers. But kahin na kahin, national anthem is very important. It is you know our national identity,
right? Okay. Therefore, states tend to favor a single homogeneous national identity in order to have unity and togetherness. But this doesn't mean that we should suppress the identity of the minority, as it can lead to revolts and there will be no unity. Or look what is happening. कहीं ना कहीं पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन में एक नेशनल, यहाँ पे कहीं ना कहीं नेशनल आइडेंटिटी को फॉलो किया जाता है, बट कहीं ना कहीं उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपना पर्टिकुलर जो रिलीजियस कल्चर है वो फॉलो नहीं करेगा, राइट? क्योंकि अगर सबको सप्रेस करेंगे, जैसे सिमुलेशन में होता है, या सिमुलेशन में सबको कहा जाता है कि एक ही कल्चर फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिवोल्ट्स हो सकते हैं, राइट्स हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिटी कभी भी नहीं बनेगी, राइट? सो बाय सप्रेसिंग द नॉन नेशनल कल्चर ऑफ माइनॉरिटी स्मॉलर, इट कैन लीड टू द प्रॉब्लम्स एंड इंस्टेड ऑफ यूनिटी द कंट्री विल डिवाइड. और अगर हम किसी को अपोज करेंगे, उसको कल्चर, उसको बोलेंगे कि यू विल नॉट फॉलो योर कल्चर, तो कहीं ना कहीं उससे डिसयूनिटी होगी और कंट्री डिवाइड होने के चांसेस होंगे, राइट? Okay, thus the government allows people to maintain culture differences in order to have peace and harmony in the society. इसलिए government always allow करती है लोगों को, individuals को, कि अपने culture को maintain करो, अपने culture differences को समझो, दूसरों के culture differences को भी समझो, right? सबके culture differences को समझो, so that peace और harmony हो जाए country में, right? So this is what your policy of integration, policy of assimilation was all about. I've given you example also, by adding certain things in the slides. Okay. सो कहीं ना कहीं यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन. कहीं ना कहीं हमने जब स्टार्ट किया था ये पर्टिकुलर लेसन, वी अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं स्टेट को हमेशा फियर रहता है क्योंकि बहुत सारी कल्चर डाइवर्सिटी होती है. उसके बाद हम कहते हैं स्टेट कैसे डील करती है. स्टेट डील करती है पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन से. और जब पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन की बात आती है तो हम ऐसे समझते हैं उन दोनों को, राइट? ओके. So this was what policy of integration was all about, right? Ab look at that. Ab dekho, look at the greatness of our country. Look, India is so great, despite having so much of culture diversity, so much religion, right? Hindus, Muslims, Sikhs, Christian, Parsis, Jainism, Buddhism. So many, religions are there in the country. So you remember that India is so great, right? India is maintaining such a good balance among all these different religious groups, or among all these different sections of the society. So remember that. अब जो policies of integration और policy of जो assimilation हमने समझी, अब देखो, what you need to understand that India दोनों में से कोई भी पॉलिसी फॉलो नहीं करता. इंडिया ना पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन फॉलो करता है, ना पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन फॉलो करता है, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं अपने आप को सेक्युलर मानता है. इंडिया इज सच अ ग्रेट कंट्री कि इंडिया कभी भी रिलीजन के ऊपर कोई भी बेस नहीं बनाता. इंडिया अपने आप को सेक्युलर मानता है, जहां पर सबको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती है. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज सो ग्रेट, जो हमें बहुत सारी इक्वालिटीज और बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन खत्म करता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, राइट? Okay, so India is a secular democratic country, right? Secular means no effect of religion. इंडिया के ऊपर रिलीजन का कोई इफेक्ट नहीं है. इंडिया हमेशा एक सेकुलर सेंस से चीजों को देखता है, जहाँ पे नॉन रिलीजियस तरीके से देखता है. क्योंकि अगर रिलीजियस तरीके से देखेगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी कि इट इज अ हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी. सो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो जाता है. तो इंडिया कभी भी नेवर लुक एट द पर्सपेक्टिव थ्रू through religious context, right? So democratic country तो है, सबको equal rights है, सबको equal opportunities हैं. हमारा constitution of India कितनी सारी provisions हैं, कितनी सारी inequalities और कितने सारे differences को दूर करता है, right? So okay. Its constitution nowhere helps a country's identity. So कहीं ना कहीं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं कहता है कि नेशनल हमारी कंट्री की आइडेंटिटी हिंदुत्व से आती है, कभी भी नहीं कहता है. एंड इंडियन मुस्लिम इज बोथ अ मुस्लिम. अगर इंडियन मुस्लिम की बात करें, वो मुस्लिम भी है और इंडियन भी है. अगर हम इंडियन क्रिश्चियन की बात कर रहे हैं, वो नहीं, क्रिश्चियन भी है और एक इंडियन भी है, राइट? वैसे ही इफ समवन बिलोंग्स टू सिखिज्म, वो एक इंडियन भी है और एक अपने सिखिज्म रिलीजन को भी बिलोंग कर रहे हैं, राइट? सो इफ समवन इज हिंदू, देन ही इज हिंदू आल्सो एंड ही इज इंडियन आल्सो, राइट? तो इंडिया हमेशा एक अच्छे बैलेंस पर्सपेक्टिव से देख रहा है. दैट्स द व्हाई इतनी कल्चर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्यों कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी? क्यों? इंडिया का पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, राइट? ओके. सो अब हम will understand this culture diversity. अब कहीं ना कहीं we have understood the कि स्टेट को फेयर होता है, थ्रेट रहता है, और दो पॉलिसीज होती हैं जो स्टेट्स जनरली फॉलो करती है, बट इंडिया दोनों पॉलिसीज नहीं अडॉप्ट करती है. अब इंडिया कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करती है? नो, दिस इज द क्वेश्चन दैट विल कम इन योर माइंड. इंडिया कल्चर डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है और इंडिया कल्चर डाइवर्सिटी को
जब एक्सेप्ट करती है, ना पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन से करती है ना पॉलिसी ऑफ असिमिलेशन से करती है। इंडिया सबको इक्वल रिस्पेक्ट देती है, इक्वल बैलेंस प्रोवाइड करते हैं सब मिनॉरिटीज को या सब रिलीजियस ग्रुप्स को, राइट। ओके, सो ओके, इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, राइट, बहुत ब्रॉड पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट नाउ इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 130-140 करोड़ अगर हम 2020 के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली जाएं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, राइट। Okay, so India is a home to various religion, right? Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and Jainism, right? Encouraging culture diversity is a good policy from both the practical and principled point of view. अब देखो, India is neither following the policy of integration, India is neither following the policy of assimilation. So India कौन सी policy accept कर रही है? Culture diversity की, जहाँ पे culture diversity को accept कर रही है. So India is accepting culture diversity, सबकी diversity को accept कर रही है और अपने अपने अंडर सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये गुड पॉलिसी है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम पॉलिसी ऑफ सिमुलेशन के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंट ग्रुप बिल्कुल डोमिनेट करके रखेगा एक पर्टिकुलर टेरिटरी को। अगर हम इंटीग्रेशन के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सबको बोलेंगे कि बैलेंस तो उसमें है, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम बोलेंगे कि पब्लिक लाइफ में आप ये आइडेंटिटी शो करो और प्राइवेट लाइफ में ये आइडेंटिटी शो करो, तो कहीं ना कहीं उसमें भी बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए इंडिया फॉलोज, रिमेंबर दैट इंडिया फॉलोज neither policy of assimilation nor policy of integration. So India कौन सी policy follow करती है? कहीं ना कहीं जहाँ पे accept होती है सारी culture diversity. So that's the reason it is written here that encouraging culture diversity is a good policy from both the practical and principal point of view. और ये question आता है, it's a very very important question. Encouraging culture diversity is a good policy from both the practical and the principal point of view, right? So इसको justify करो, ये question आता है, right? Okay, so कैसे होती है? I'm just left with 2 minutes and 20 seconds, 20 odd seconds, and I'll read it. Okay, encouraging culture diversity. Okay, the Indian nation state is socially and culturally one of the most diverse countries of the world, and you know that, right? India has one of the largest populations speaking multiple languages, both are languages. It consists of multiple religions. I've already discussed this. Plural in beliefs, and both are different beliefs or different practices. Okay. In terms of nation-state relations with the community, the Indian case fits. Look at that. What is written here? I have been telling you this. The Indian case fits neither the assimilationist nor the integrationist model. So India neither follows assimilation model or integrationist model, right? The Constitution declares the state to be a secular state. अब जो हमारे Constitution है, जिसके बारे में बहुत सारी बात करते रहता हूँ हमेशा, Indian Constitution ने Indian state को secular declare कर दिया है, कि ना कि बोला है कि India is a Islamic state, जैसे पाकिस्तान कहता है कि India is a Islamic state, या अदर बहुत सारे अरब countries हैं जो कहते हैं that their country is a Islamic state, और या जिस भी आइडेंटिटी पे वो अपने बेस करते हैं अपनी कंट्री को, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर कर दिया कि द स्टेट टू बी सेकुलर स्टेट है, बट रिलीजन एंड लैंग्वेज अदर फैक्टर्स आर नॉट बैनिश्ड फ्रॉम द पब्लिक स्पेस। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने क्या कर लिया, इंडिया ने अगर इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलर डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं या रिलीजन लैंग्वेज के बेसिस में उसको पूरी तरह बैनिश कर दिया, उनको भी पूरी तरह दे हैव कंप्लीट राइट्स टू प्रैक्टिस व्हाटएवर दे वांट टू, राइट। सो सबको फ्रीडम है, लिबर्टी है, राइट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू यूज। ओके, so we'll continue this chapter in the next class. Okay, so time has come to say you goodbye. Okay, so until then, take care all, stay safe, and सब सबको time पे आना चाहिए class में, right? Okay, so until then, take care all, stay safe, stay at home, and utilize your time, and we'll continue the chapter tomorrow. Okay, so bye bye everyone.